Say hey to Brunali Shirke, a Marathi favorite who talks to me about her journey in acting. पैसे के लिए मत आओ। पैशन रहेगा, कुछ काम करके दिखाना है तो उसके लिए आओ। इंडस्ट्री के बारे में 80% चीज़ें नेगेटिव है, 20% चीज़ें अच्छी है। बट अगर तुम्हें 80% पार नहीं कर सकते तो तुम्हें ये 20% नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर संजय लीला बंसाली। Thank you so much, Brunali, for joining me on this episode of Karishma Connect. It's a pleasure to have you. I can't wait to know more about your journey. Thank you again for your time. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। Most welcome. Tell me now, the first question I ask anyone on this podcast is tell me about that journey, that wonderful journey that you've had so far. What makes it special to be where you are today? The special thing about this journey was it was unplanned. Yeah. I had never planned to be an actor. I had never planned to be part of this industry. Uh, I'm a science student learning. I have done BSc in mathematics, and then I completed my masters in data science. Wow. And then actually I didn't plan to be in the industry. The industry maybe planned to have me, so it just happened to me. So yeah, this is that one thing I feel it's very special because it's somewhat like you say, no, the unplanned things are very goes very well because it's not your plan, it's your God's plan. So this is just one of the things. So yeah, it's special because of this reason. And it started pretty late for me. Like there are people who start in a very young age, but for me I started after completing my graduation. And that happened because I was searching for a job during lockdown, and my father was had got spinal TB, and then he was bedridden for like 4 years. So for that, I was in the search of finding some work, some job, and then eventually I got opportunity from the industry for assisting as a director. So yeah, so I started with that, and then जैसे हम मार्क पे खड़े होते हैं ना कि एक्टर्स को बताने के लिए इधर खड़ा रहना है, तो अब यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो बीइंग द थर्ड एडी और द कॉस्ट्यूम एडी or something, how they just come and stand कि सर इधर खड़ा रखना है, ओके इधर मार्क करते हैं. So for that I used to just come and stand in front of camera, and then people used to see me on monitor. And then many directors, fight masters, choreographers and all, they started telling my director that अरे इसका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है यार, इसको पुश कर थोड़ा, शी हैज अ गुड प्रेजेंस, जस्ट ट्राई विथ हर, नो. मतलब वो होता है ना कि हमारे पास ही है कुछ और वी आर सर्चिंग इट अराउंड. So yeah, so that is how it started, and then slowly I started learning things, and I came to know how to take lights, then how to be in front of camera. कि अगर कैमरा है तो उसके पास बैक नहीं रहना चाहिए, मिनिम all the things which you basically need. So I did not learn acting from anywhere. It just happened to me. And me being the always an extrovert person who is always wanting to keep learning new stuffs every time, and keep trying good things. So this was also a little exciting for me, so I love doing it because I was always into cultural activities in school, colleges, into dance, into I was never into acting, but I was into dance and all the expressive things and all, no. So it did not took me I feel more much of the efforts to do something. हाँ, कुछ जबरदस्ती नहीं किया मैंने खुद के ऊपर. I just told to myself कि let's just give it a try. I gave it a try, and I feel I'm just doing it pretty well. Not मतलब it's not like that कि मतलब I was any time ready to quit it, या or any time I always had that plan B कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या. तो yeah, so just try error करते करते I have reached till here. We still don't know what is the future. We still don't know what we will be in the next 5-10 years. But today I am an actor and I present myself as an actor in front of you today. Do you think that plan B gives you the security when you're entering this kind of an industry? Of course, I feel sometimes that people should keep this industry as plan B, because uh, I normally tell my juniors also that if you are wanting to pursue in this industry, no, first complete your studies, first complete your career, first run behind what you are, मतलब जैसे पढ़ाई के थ्रू करते, because this is that dream industry.
जो सबको नहीं मिलती है, इट्स जैसे सपना है लोगों का। पर अगर बहुत से लोग हैं जिनको ये करना है बट सबके नसीब में नहीं है। आई रियली बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट योर लक ऑल्सो। मतलब हार्ड वर्किंग तो है ही, बट वो प्लेटफॉर्म मिलना और तुम्हारा टैलेंट शोकेस होना, इसके लिए भी लक लगता है। तो नॉट एवरीबडी इज गेटिंग दैट, एंड आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट आई हैव गॉट इतने लेवल का प्लेटफॉर्म टिल माई इन दिस 4 years। सो दिस इज अ बिग थिंग। तो अगर ये वर्कआउट नहीं होता तो आई डेफिनेटली हैड टू गो फॉर जो मैं जिस चीज में मैंने पढ़ाई की है। तो ऑलवेज रन फॉर योर प्लान ए, कीप दिस इंडस्ट्री, कीप दिस पैशन एज योर प्लान बी, कीप इट एज जैसे हम अपना एक हॉबी रहता है या फ्री टाइम जो चीज रहती है। बिकॉज आई पर्सनली फील कि आर्ट जो है ना या जो हम करते हैं ये अपने साथ मरने तक रहता है। इट नेवर हैज रिटायरमेंट, इट नेवर हैज, या सो इट्स नथिंग लाइक कि मेरा एज अभी है तो अभी नहीं करूंगी तो कभी नहीं होगा। देयर आर मेनी पीपल हु जस्ट स्टार्ट्स दिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो आई फील ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, कभी भी तुम्हें चाहिए तो ब्रेक ले सकते हो तुम, कभी भी इट्स ऑल अप टू यू, इट्स लाइक अ कंप्लीट फ्रीलांसिंग। बट डोंट रिलाई ऑन दिस फॉर योर ब्रेड एंड बटर। बिकॉज अगर इस पे वो रहेगा ना कि नहीं इससे ही कमाना है, इससे ही मैं कुछ करूंगा, तो आई फील नॉट एवरीबडी इज लकी इनफ टू गेट दैट मच सक्सेस एंड अर्न। सो या आई फील दैट। And it's a highly competitive industry as well, right? Especially for newcomers. Is there something you've realized over time about dealing with that kind of competition? Have you even thought about it? Because you said the industry happened to you. टू बी ऑनेस्ट, जैसे हम बचपन में टीवी देखते हैं तो वो होता है ना कि इवन आई वांट टू बी देयर, इवन आई वांट टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म सम, ये मेरे को बचपन से है, एक अंदर से समवेयर। आई बिलीव इन दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग, समटाइम्स इन योर back mind you constantly keep on attracting something, and maybe you feel ये हमको नहीं, it's something like I'm wanting to have a G wagon right now but I know I can't afford it। मतलब बोलते हैं ये मेरी औकात में ही नहीं है, but it is there in the back of the, so if I'm attracting it, no, if you वो universe no, मतलब बोलते हैं it works for you, maybe not immediately, but after maybe after 10 years 20 years some time or other, no, it will work for you। but I feel वो जो law of attraction मेरा बचपन से था कि मुझे इधर रहना है, वो चीज मेरे लिए अभी वर्कआउट की। सो एज यू सेड कि आई एज दिस इंडस्ट्री जस्ट हैपेंड टू मी, after coming in this industry, when I decided that I wanted to, while like I want to be a full-fledged actor only now, that time the competition, well that time I started feeling the competition। because जब तक हमें ऐसा है कि चलो चलते रहना है, we have to do it, and बोलते हैं ना कि स्ट्रेस नहीं है तब तक कुछ नहीं लगता। बट फिर जब वो कंपटीशन आ जाता है, जब तुम उस चीज को एक अपना करियर बनाने का सोचते हो, तब यू ऑब्वियसली फील कि नहीं मैं, आई वॉन्ट टू रन मोर, आई वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ मोर, आई वॉन्ट टू अचीव मोर एंड मोर एवरी डे। सो तभी ना आई फील किसी और से, और का कंपटीशन दूर की बात है, लेकिन खुद से अपना कंपटीशन बढ़ जाता है ना। या सो एवरी डे यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ कि अरे आज मैंने अपना ये एक लेवल अनलॉक कर लिया, आई केम टू नो आई कैन बी दिस, आई कैन बी दिस, आई कैन बी दिस, आई वांट टू अनलॉक मोर ऑफ माय पर्सनालिटीज, आई वांट टू अनलॉक मोर ऑफ द थिंग्स। सो ये कंपटीशन खुद में है, और बाहर जाओगे तो बाहर तो है ही है। मतलब इट इज लाइक आई रियली फील दैट टाइम आई जस्ट कीप इट ऑन द लक कि अगर तुम्हें मिल गया भाई बस भागते रहो, जितना हो सकता है उतना खुद को प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको मिस मत करो, क्योंकि यू नेवर नो कौन से प्लेटफॉर्म से तुम कहाँ पहुंच जाओगे। जैसे आई वाज परफॉर्मिंग फॉर द गणपति प्लेटफॉर्म्स विच हैपन इन महाराष्ट्र, जिधर हम छोटे मोटे स्टेज के लिए, वहां से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने स्कूल के प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया, फिर कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया, फिर इंटर कॉलेजेस किया, फिर I just kept giving myself different levels of platform। That is the reason I feel God also gave me more platforms। If I would not, yeah, so if I would not want to look out for platforms, I would not get। If I don't push myself more, if I don't be my own competition as compared to what I was yesterday, तो it would not be। So ये खुद का competition तो है ही है। एंड बाहर का वर्ल्ड में मतलब I'm at least as that I have two languages that I can work in Marathi industry also and Hindi industry also। So at least मराठी में थोड़ा competition कम है as compared to हिंदी, but हिंदी में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब
हिंदी में तुम्हें अगर कोई कैमियो करने में मिल रहा है तो इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज़ उतना भी नहीं मिलता है लोगों को। इतने लोग हैं जो मर रहे हैं दिन में कि हमें सिर्फ़ एक बार टीवी के सामने आना है या कैमरा के सामने आना है, स्क्रीन पे दिखना है। तो उतना मिलना भी इज़ अ बिग थिंग। तो आई फील माई सेल्फ फॉर्च्यूनेट दैट आई गॉट टू वर्क यू नो बोथ द इंडस्ट्रीज़। तो या कॉम्पिटिशन तो है and बहुत एक्सपीरियंस किया है मैंने अभी 4 साल में। I have known you for a very brief time, and what I've understood about you is that you're somebody who really holds uh, her values, her individual identity, the way she is, the way you are, in a very unique way, close to yourself, and you kind of do whatever you do with that intact. So for me, that's what kind of stood out when we spoke. ये जो कॉन्फिडेंस है टू एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल योर मल्टीपल पर्सनालिटीज, कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन द हाउस, इन देयर इन बिटवीन देयर फ्रेंड्स, इन द कॉलेज, इन प्रोफेशनल लाइफ, एवरीवेयर। सो ये जो डिफरेंट पर्सनालिटीज हम में है, ये पहली बात तो खुद एक्सेप्ट करना ये ज़रूरी है। तो ये खुद का एक्सेप्टेंस मिलना, ये भी मुझे इमीडिएटली नहीं आया। आई वुड गिव क्रेडिट्स टू माई इंडस्ट्री फॉर दिस, कि जहाँ मुझे खुद के पर्सनालिटीज से मिलने मिला कि आई कैन बी द स्वीटेस्ट पर्सन, आई कैन बी द हार्डेस्ट पर्सन, आई कैन बी द रूडेस्ट पर्सन, और whatever, I can be comedy also, or I can be maybe a little whatever sarcastic also. So ये जो डिफरेंट डिफरेंट moods है, इमोशंस है, डिफरेंट पर्सनालिटीज है, ये पहले तो इंट्रोड्यूस हुए मुझसे ये इंडस्ट्री की वजह से। फिर उसमें से देर आर फ्यू ऑफ द पर्सनैलिटीज विच आई एक्सेप्टेड फॉर माई सेल्फ, कि ओके आई कैन बी दिस, लाइक ओके इफ आई फील कि आई डोंट वांट टू डू मेकअप एंड गो आउट टुडे, आई विल गो। तो पहले मेरा हो सकता है कि पहले वो कॉन्फिडेंस, अभी भी मेरा कभी कभी हो जाता है कि अभी मैं नीचे जा रही हूँ, पीपल नो मी, हाउ कैन आई जस्ट गो लाइक दैट। फिर वो खुद का जो एक्सेप्टेंस है ना, once you start getting that acceptance for yourself, automatically you become that. So abhi I will not say I've become 100% of it. There are few areas and few personalities which I don't feel like showing it out yet, which I have kept it reserved and all. But yeah, so what you're saying is true. I agree with what you noticed. So yeah, so that helps me sometimes to, or actually sometimes many times, being an actor, every time you have to be on, switch off, switch on for your different personalities, be real, be fake, be whatever, in front of camera different, real life mein different, hide your real emotions, be something, some take somebody else's character and portray it. तो वो सब चीजें आई मेरे में बिकॉज ऑफ एक्टिंग, आई फील। तो वो थोड़ा सा जो एक्सेप्टेंस पार्ट है, वो इंडस्ट्री के वजह से आया, और थोड़ा वो कॉन्फिडेंस भी इंडस्ट्री की वजह से आया, व्हेन आई मेट डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट पीपल्स अराउंड मी। What are some of the realities of the TV industry that people are not familiar with? What does it entail at large? First of all, I would not like to say only good things, because good things दिखती है सिर्फ, होती नहीं है। I would definitely want to give the reality check whoever are wanting to pursue in the industry. First of all, it is not easy, because uh, if you're working in some industry, definitely you're looking out for money, or you're looking out to have something like a basic starts with bread and butter। नेम फेम मिलना, उसके लिए बहुत टाइम जाता है। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू डू, नॉट एवरीबडी गेट्स इट इजीली। बैक स्टोरी, हर एक जो भी फेमस होते हैं उनका कुछ ना कुछ बैक स्टोरी रहता है। यू कैन एक्सपेक्ट मैं पहले शो में फेमस हो सकते हैं, बहुत लोग होते हैं, बट उसके पीछे भी कुछ रीजन है। देर आर सम थिंग्स विच वी हैव नॉट सीन, विच आर अनसीन। सो उसमें वो हो जाता है कि क्या बोल सकते हैं, कि मनी मैटर करता है, कि यू डोंट गेट इमीडिएट गुड मनी इन दिस इंडस्ट्री। सो इफ यू आर प्लानिंग कि मैं इसमें काम करके पैसा कमा के कुछ बड़ा बनूंगा, तो डोंट। इफ यू आर कमिंग विद दिस इंटेंशन, डोंट कम इन द इंडस्ट्री। इफ यू आर कमिंग विद द पैशन ऑफ लर्निंग, ऑफ परफॉर्मिंग, जिसको परफॉर्मेंस का भूख है ना, कि मुझे एक्ट करना है, वो लोग ही आइए। क्योंकि पैसा कमाने के लिए कोई कोई नहीं बैठा है तुम्हें पैसा बांटने के लिए। First of all, nobody will give you free until and unless you stand out. You have to stand out, and for that यू उस खुद में होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए, और सेकेंडली वो हुनर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग बडी इज बॉर्न विथ इट, बट वो एज के साथ ना, वॉट एवर यूर लाइकिंग, यू ट्राई टू परस्यू इट, यू ट्राई टू
uh, practice about it, you try to change yourself, you see videos, maybe you see some of your favorite actors, उनकी एक्टिंग या उनके काम देखकर सीखते हैं, तो वो कर करके इस लेवल तक आओ। तो सेकंड लेवल से कि पैसे के लिए सिर्फ, मतलब पैसे के लिए मत आओ, पैशन रहेगा, कुछ काम करके दिखाना है तो उसके लिए आओ। देन आई वुड से द रियलिटी चेक इज की टाइम शेड्यूल, it is not like 9 to 5, definitely not like 9 to 5। You, at least I feel corporate world में there are some legal on paper works जिसमें तुम्हारे पास भी कुछ राइट्स रहते हैं और कंपनी के साथ के पास भी कुछ राइट्स रहते हैं। सो कोई किसी को निकाल नहीं सकता है अंडर एनी कंडीशन, ऐसे ही किसी को निकाल नहीं सकते। तो यू हैव, बट इस इंडस्ट्री में वैसा नहीं है, इस पे तुम्हें अपने रिस्क पे काम करना है। जब तक चल रहा है तब तक चलने वाला है। अगर नहीं हुआ, कोई तुम्हें रातों रात रिप्लेस कर देगा, कोई तुम्हें रातों रात निकाल देगा उस प्रोजेक्ट में से, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू कैन नॉट कंप्लेन एनीबडी। ऐसे तो है यूनियंस एंड ऑल, बट आई एम टेलिंग यू जो रेगुलर होता है, जो छोटे प्रोडक्शन की चीजें होती है, बड़े प्रोडक्शंस में तो प्रोफेशनली काम होते हैं, बट वेन यू आर स्टार्टिंग विथ, यू डोंट गेट बिग बैनर्स इमीडिएटली, you have to start doing it with small projects. So this is what I'm telling you for the small projects and producers or whatever the sets। तो ये एक बात है कि टाइम शेड्यूल नहीं है, यू डोंट गेट 9 to 5, तुम्हें 12, मतलब आई माई सेल्फ वर्क फॉर, आई फील 48 hours ऑल्सो कंटिन्यूसली फॉर 2 days कंटिन्यू शूट्स भी चलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि नॉट, कि यू रियली जस्ट लूज योर माइंड दैट यू कांट वर्क, मतलब तुम में वो पेशेंस नहीं है ना, तो मत Yeah. आओ इंडस्ट्री में, बिकॉज इंडस्ट्री में जितने लोग हैं ना, दे आर डेफिनेटली द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन जिनको जिनको सुख नहीं चाहिए जिंदगी में। दे कांट, उनको देखा नहीं जा रहा है कि हम अब आराम से जिए, थोड़ा जो भी मिडिल क्लास जैसे 50-60 हजार पगार लेकर महीने का नहीं। हम एक महीने में 10 लाख कमा लेंगे, नहीं तो साल भर घर पे बैठेंगे। ये हाँ, सो थ्रिल करना है ना जिंदगी में, तो इंडस्ट्री में आओ, जिधर तुम्हें यू हैव टू लिव फॉर दैट वन डे वाइज, यू कैन नॉट प्लान, लाइक बहुत लंबा नहीं तुम प्लान कर सकते, क्योंकि वो हमें खुद को नहीं पता होता है। फिर प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे स्टार्टिंग में फंसाने वाले मिलते हैं। यू डोंट दे तुम लोग मतलब कहते हैं ना कि तुमसे काम करा के लेंगे, तुम्हें बहुत मतलब करेंगे पर पेमेंट नहीं देंगे, या पेमेंट के लिए रुका के, या फिर नहीं देंगे ऐसा बोलेंगे भी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, पर उसके बाद करेंगे, ऐसे करते करते टाइम निकालेंगे एंड दे विल नॉट पे यू। फिर कुछ लोग मतलब यू शुड ऑल्सो नॉट ओनली पार्ट ऑफ दिस, बट एक प्रोफेशनल लेवल के बाद देर आर फ्यू थिंग्स विच एवरीबडी नीड्स टू नो। जैसे कि पेमेंट के टाइम पे टीडीएस वगैरह कट करते हैं। अगर टीडीएस तुम्हारा कट हो रहा है, तो तुम एट द ईयर एंड चेक करो कि तुम्हारा शो किया है क्या। बहुत से कंपनीज तुम्हारा टीडीएस कट करते हैं पर शो नहीं करते, तो वो कट किया हुआ पैसा उनके जेब में जाता है, एंड देन यू आर नो बडी, बिकॉज यू डोंट हैव, बिकॉज मेनी एक्टर्स डोंट हैव the thing, because I'm not blaming any particular person or something, but many people hire CAs and other account person because they don't understand all these things. So I feel you should be little smart enough also, at least in case of your payment, where you know your things, कि अगर तुम्हारा पैसा कोई काट रहा है तो मेक श्योर कि अगर तुम्हें अगर वो लोग शो नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है। तो डोंट स्कैम बहुत होते हैं। हम लोग कर देते कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भाई, हमें पता है, फँसाने वाला नहीं है, बट अरे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी उसका है, वो जो भी है सब उसका ही है। तुम्हें क्या पता वो लीगल है, वो नहीं है, और क्या ही है मतलब। नॉर्मल पेपर किसके पास जाओगे कंप्लेंट करने अगर कुछ तुम्हारा, बिकॉज़ आई एम सेइंग कि लोगों के लाखों में पैसे अटक जाते हैं। तो मेक श्योर कि यू डोंट गेट स्कैम्ड। For that you have to be very alert at every point, at every stage of your the thing। फिर in case of girls, many people come to Mumbai, leaving their hometowns and all to make their career here। रेंट पे रहते हैं, मम्मी डैडी से पैसे लेते हैं, या फैमिलीज के साथ।
फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, घर से लिटरली भाग के भी मैंने देखे हुए लोग आए हुए हैं मुंबई में, वर्सोवा में, आराम नगर के यहाँ पर रहते हैं। इफ यू आर डूइंग दिस मच, आई रियली फील समटाइम्स कि डोंट परस्यू एनीथिंग इन लाइफ जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को दुख देगी। इफ योर फैमिली इज नॉट रियली हैप्पी एट, मतलब वो है कि अभी भी मेरे मेरे भी फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं था जब मैं इंडस्ट्री में आई, बट एटलीस्ट आई वॉज विद देम, तो दे कुड सी मी एवरी। बहुत से बच्चे ये होते हैं कि जो बहुत ही ऐसे गाँव से आते हैं, जहाँ जिनके लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ जा रहे। यू नो इट्स समथिंग लाइक कि अगर मैं आज मेरा होम टाउन छोड़ के अगर मैं हॉलीवुड में काम करने का सोचूँ, डेफिनिटली इट्स अ बिग थिंग। बट इफ आई जस्ट गो, माय फैमिली विल नॉट लेट मी गो, बिकॉज़ इट्स है बड़ा नाम, है सब कुछ। यू डोंट नो इफ यू विल गेट देयर, और तू जाएगी भी, वहाँ रहेगी भी, तेरा खर्चा-वर्चा करेगी भी, तो तुझे पता ही कितना है कि तुझे उधर काम मिलेगा। मिलेगा भी तो तू क्या काम करेगी? तेरा उधर सक्सेस होगा, नहीं होगा। बट उतने टाइम के लिए मैं अपने फैमिली को इधर तड़पते हुए छोड़ दूँ। जहाँ वो लोग सोच रहे मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ वो सेफ है कि नहीं है, तो वो मत करो। Don't let your parents be in that so much worried thing where they are not, उनको भी रहता है ना कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहे कम से कम, भले तुम 4 पैसे कम कमा लो बट हमारे साथ रहो। तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड आई फील कि लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी फैमिलीज को हम कितना दुख पहुंचाए, कितना उनके अगेंस्ट जाए, या कितना कुछ करे, यू नो। क्योंकि आई नो ये इंडस्ट्री का नशा है, ये इंडस्ट्री का अलग ही नशा है, जहाँ लोग कुछ भी कर सकते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। सो आई फील जस्ट डोंट गो वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगर तुम्हारे नसीब में है, तुम कैसे भी फेमस हो सकते हो। इंडस्ट्री के बारे में 80% चीज़ें नेगेटिव है, 20% चीज़ें अच्छी है। बट अगर तुम्हें 80% पार नहीं कर सकते तो तुम्हें ये इंडस्ट्री के बारे में 80% चीज़ें नेगेटिव है, 20% चीज़ें अच्छी है। बट अगर तुम्हें 80% पार नहीं कर सकते तो तुम्हें ये 20% नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो स्ट्रगल 80% है और सक्सेस हार्डली 5-10% है उसमें। तो या फील कि कॉम्प्रोमाइज करने से भी काम मिल जाता है इंडस्ट्री में, बिकॉज देर आर फ्यू प्रोड्यूसर जो तुम्हें ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, जो तुम हमारे साथ ये कर लोगे, तुम्हारे हमारे साथ वो कर लोगे तो तुम्हें हम काम देंगे, तुम्हें हीरोइन बनाएंगे, बड़े पिक्चर में काम ये करेंगे, जो भी है। या इन दैट केस पैसे लेकर भी तुमसे कि तुम हमें इतने पैसे दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी में। पहली बात तो कॉम्प्रोमाइज करने से तुम्हें काम नहीं मिलने वाला, या अगर मिलने भी वाला है तो यू बी क्लियर वेदर यू आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर दिस और यू वांट टू वर्क। अगर तुम्हें सिर्फ काम करना है ना, तो यू विल फाइंड योर वे थ्रू। जैसे आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये चीजें मेरी लाइफ में आ चुकी है, वेर इवन आई हैव गॉट सच प्रोड्यूसर्स इन माई लाइफ वेर दे हैव आस्क्ड मी अपफ्रंटली, आर यू रेडी टू कॉम, मतलब उनके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज वेरी लाइव ऑन दिस योर पॉडकास्ट, बट पीपल रियली नीड टू नो दिस साइड ऑफ इंडस्ट्री वेर दिस इज प्रोफेशनल ऑल्सो समवेयर, जो दिखाया नहीं जाता है। वेर मेरे पास एक प्रोड्यूसर का, आई वॉज डूइंग वन सॉन्ग, आई वॉज एक्चुअली डूइंग असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इन दैट, एंड दे लाइक्ड मी एंड दे लव मी एंड द प्रोड्यूसर लाइक मी। सो उसने अपने प्रोडक्शन हेड को मुझे मेरे पास भेजा प्रोफेशनली बात करने को, एंड शी इज आस्किंग मी कि माई प्रोड्यूसर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक यू एज अ हीरोइन, he is planning to add one more stanza in the song for you, and we will shoot you on the cruise, एक cruise book करने वाले हैं ना। I was very happy कि wow it's a good opportunity and all, but then she told me कि okay so we but he is wanting to compromise, are you ready to compromise with him and all। तो first of all when I was new I did not understand word of this meaning of this compromise, मतलब अपने लिए क्या होता है मुझे, मतलब we have a different meaning of it, but industry has a different meaning of the word। तो फॉर मी ना आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज, आई थॉट मे बी कम बजट में करोगी क्या, ऐसे मुझे लगा। तो आई वाज वेरी इनोसेंट दैट टाइम, एंड देन आई टोल्ड दिस थिंग टू माय सीनियर जो जिसके लिए मैं असिस्ट कर रही थी, कि ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने बोला है व्हाट, तो शी वाज वेरी शॉक्ड। शी इज लाइक कि सी आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई विल टेल यू। पहले तो उसने मुझे कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग बताया व्हाट इट इज। या मतलब आई वाज वेरी डम इनफ, एंड इट हैपेंस ओके। या बट आई वाज लकी, एंड मेरे मन में कभी कोई बुरा चीज़ नहीं था, इसलिए भगवान ने मुझे हमेशा ऐसे लोग दिखाए जो मुझे गाइडेंस देने वाले थे।
तो शी टोल्ड मी फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज इन दिस इंडस्ट्री एंड व्हाट दे मेंट बाय दैट, एंड दैट स्ट्रेट मोमेंट आई वाज लाइक, ओह नो नो, आई नो सॉरी, मतलब मैं एक अदर कम बजट में काम कर लेती, बट आई एम नॉट here for this. I definitely want to become something. This is very in the initial stage of my जर्नी, आई एम टेलिंग यू। तो तभी तो हम टेन तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ, जब भी वो जो एक्सवाइज़ेड सॉन्ग में वो लड़की अभी जो काम कर रही थी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ही काम कर रही थी। और आज वो गाना कहीं पर भी नहीं है। मतलब यू you नो know, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर्स कहाँ-कहाँ से आते हैं, एंड दे जस्ट शो कि पैसे, मतलब बड़ा होटल बुक करेंगे, दे विल डू ऑल ऑल द लग्जरियस थिंग्स ओनली टू डू द कॉम्प्रोमाइज़ थिंग। उनको प्रोडक्शंस, उनको सॉन्ग रिलीज़ करने में या इंडस्ट्री में कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। दे आर जस्ट हियर फॉर सम रीज़न, एंड वी द गर्ल्स, सच न्यू गर्ल्स गेट स्कैम्ड इनटू इट। So I feel girls, boys rather, whoever, they should be very much alert with such things and be clear तुम्हें क्या करना है। इंडस्ट्री में काम करना है तो डेफिनेटली ये करके कुछ नहीं मिलने वाला है। Tell me, how has your experience in the Marathi industry been different? How is the Marathi industry different from the others? So I have worked in Hindi and Marathi till now, like two industries, and I feel Marathi में you get pure talent. सो मराठी इंडस्ट्री में जो एक्टर्स है ना, वो मेरे मेरे लिए बहुत, मतलब दे आर द कोर एक्टर्स, दे आर द रियल एक्टर्स, जो लोग थिएटर करके आए हुए रहते हैं, एंड दे आर द, मतलब उनको देखकर ही तुम्हें समझ में आती है तुम्हारी औकात। इट्स जस्ट वेरी क्लियर दैट यू लुक एट देम एंड यू फील लाइक how anybody can be so expressive, so on the point, and एंड वो लोग ऐसे रियल लाइफ में नहीं है। तो जो कैरेक्टर वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो लोग जो ऑडियंस जो देखती है ना उन्हें, उनके लिए वही रियल है। और फिर जब उनका रियल लाइफ अलग रहता है, तो मतलब अब जब मेरे लिए ही, मैं खुद जब एक ऑडियंस थी, जब मैं खुद कॉमन मैन थी, जब मैं टीवी पे वही एक्टर्स को देखती थी, तो मुझे लगता था कि वाओ दे आर सो, कैसे। एंड नाउ व्हेन आई दे आर फ्रेंड्स, और व्हेन आई एम मीटिंग देम इन पर्सन, आई फील कि अरे ये तो कंप्लीट डिफरेंट है। लाइक एग्जांपल, जो टीवी पे विलन दिखाते हैं, दे आर द स्वीटेस्ट पीपल ऑन सेट, आई फील। एंड इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। सो ऐसे है। तो मराठी इंडस्ट्री में टैलेंट है, प्योर टैलेंट है, यू गेट टू, बट बजट नहीं है। आई रियली फील दैट वन थिंग अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर्स, एज मराठी इंडस्ट्री इज ओनली लिमिटेड टिल महाराष्ट्र। ऑब्वियसली अभी वो एक्सटेंड कर रहे हैं कोई कोई प्रोजेक्ट्स लेकर इन अदर स्टेट्स, इन अदर कंट्रीज एंड ऑल, बट अदरवाइज मेजोरिटी इज इन महाराष्ट्र। सो इसका क्या बोलते हैं, ऑडियंस कम है, इसलिए थोड़ा बजट कम रहता है, बट अदरवाइज यू गेट टू लर्न। इफ आई रियली फील फॉर्चुनेट कि आई गॉट इन सच एक्टर्स का कॉन्टैक्ट, जिसके वजह से उनको देख देख के मैं सीखी हूँ कि कैसे चीज़ें की जाती है, क्या कैसे बोला जाता है, अगर ये पर्टिकुलर थिंग है। तो बोलते हैं ना कि अगर टीचर नहीं है, तुम्हें कोई गुरु नहीं है, तो दे दिस सीनियर एक्टर्स को देख देख के ही मैं सीखी हूँ। इन कंपेयर टू बॉलीवुड, और इन बॉलीवुड नहीं बट हिंदी इंडस्ट्री का है कि आई फील दैट वन थिंग कि बजट अच्छा है, तो लोगों को डेफिनेटली अगर मिल रहा है तो बजट के लिए काम करो। सेकेंडली एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, कि जहाँ तुम्हारा शो या तुम जो जहाँ भी काम करती हो तुम, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में दिखता है। प्लस हिंदी लैंग्वेज है, तो सब लोग समझ सकते हैं, देयर इज नो बैरियर। बट अगेन हिंदी में थोड़ा सा कंपटीशन है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कि तुम्हें एक तो मिलना भी नहीं, मतलब आई विल टॉक अबाउट टीवी सीरियल लेवल, बिकॉज़ आई हैव जस्ट वर्क टिल देयर। तो अभी तक मूवीज़ में काम करने का मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला है। तो या तो टीवी सीरियल के वाइज़ वो भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कि उसमें भी मिलना डिफ़िकल्ट है, फिर भी लोग उधर करते हैं। बजट अच्छा मिल जाता है, सबको नहीं मिलता है, बट जिसको मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। बट जो कम से कम भी मिलता है, फ़ील बेटर, अच्छा ही है। बट बैड थिंग है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी इंडस्ट्री में बहुत ही अलग, मतलब जैसे अलग, अपार्ट फ्रॉम कैसे बोलती हूँ मैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि डिज़र्विंग एक्टर्स हैं जिनको नहीं लिया जाता है, बल्कि जो लोग नोन हैं या किसी नोन फेस के बच्चे हैं,
उनको ज़्यादा पुश किया जाता। बहुत बारी मैंने ये देखा है कि अगेन नो ऑफेंस फॉर इन्फ्लुएंसर्स, बट लोग इन्फ्लुएंसर्स को आजकल लेने लगे हैं फॉर टीवी सीरियल्स और बिग बैनर प्रोजेक्ट्स, वेयर आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट एटलीस्ट आई फील द पीपल हु आर कास्टिंग देम शुड एटलीस्ट सी कि आर दे डिजर्विंग, नॉट ओनली बेस्ड ऑन देयर फॉलोवर्स। लाइक होता है बहुत बार कि उनके सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पर या ब्लूटिक के बेसिस पर उन्हें कास्ट किया जाता है, जबकि उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग एक्टर्स थे, जो वो सेम रोल काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते थे। जो मुझे लगता है कि वो लोग, दैट इज़ अ अन्याय और इनजस्टिस विद द एक्टर्स, एंड ऑल्सो आई फील दे आर वेस्टिंग देयर बजट एंड एनर्जी, एंड बिकॉज़ उनको ट्रेन करने के लिए उतनी ज़्यादा टीम ज़्यादा लगती है। आई विल नॉट ब्लेम दैट पर्सन ऑल्सो, बट आई विल फील कि जो लोग कास्टिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों को, वो तुम पहले देखो, आर दे केपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ दिस शो, बिकॉज वो लोग ने इसके पहले इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया, एंड डूइंग टीवी सीरियल इज लाइक सुबह 6 बजे आओ सेट पे, रेडी हो जाओ, कंटिन्यूअसली शूट 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 करो, और फिर 8-9 बजे जब भी पैकअप होगा तो पैकअप करके फिर वापस ट्रैवल के घर पे आओ, एंड दिस इज अ एवरीडे रूटीन, एंड नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। And I feel influencers, hardly any influencers can do TV serial shooting, because they are used to of their own tripod, their own stand according to their own convenience and their own scripts. They do it, and suddenly when they have to work professionally with others instructions, with other script, with other things, with other character, they can't do it, and I have seen it with my eyes. तो मुझे लगता है कि ये एक चीज थोड़ा करनी चाहिए But इंडस्ट्री। that many a times the script is also not something that's developed. टीवी सीरियल्स में तो हमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें गरमा-गरम स्क्रिप्ट मिलती है। मतलब या जैसे हम चाय मँगाते हैं, वैसे हम मेकअप रूम में पूरा रेडी हो जाते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आता है कि चलो मैम रेडी है? हाँ, हम रेडी है लेकिन स्क्रिप्ट कहाँ है? फिर ओह! स्क्रिप्ट नहीं मिली? अरे स्क्रिप्ट लेकर आओ। फिर समबडी विल कम, फिर मैं रूम में 1 मिनट दे बस मेरे को भाई, फिर हम एक बार देखते हैं, अगर पढ़ के अगर वो लोग बहुत अर्जेंसी है तो वैसे ही हमको जाना पड़ता है बिना पढ़े, और फिर अगर अच्छे डायरेक्टर रहते हैं तो वो सबको चेयर पे बिठा देते हैं कि चलो एक बार स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं। नहीं तो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि चलो स्टार्ट, अरे सर पढ़ा ही नहीं है। अरे तो क्यों नहीं पढ़ा सर, स्क्रिप्ट ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे वो आप आपके डायरेक्शन से पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो ये मतलब मेरे साथ ये बहुत बारी हो चुका है कि भाई मैं रेडी हूँ, पर मुझे एक बार, मतलब मैं एक बार नहीं पढ़ूँगी तो मैं नहीं, मतलब एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना स्क्रिप्ट। इवन तो थोड़ा बहुत टैलेंट होगा इंसान में, बट एक बार ही तो पढ़ना, बस सर फिर वो हो जाता है कि अरे स्क्रिप्ट क्यों नहीं दिया, ये वो। तो ये तो होता है, गरमा-गरम स्क्रिप्ट मिलती है टीवी सीरियल्स के लिए, जहाँ तो वो लिटरली हाथ में ऐसा गरम ही प्रिंट होके आता है, लिटरली इसलिए उसको गरमा-गरम बोलते हैं। कि प्रिंटर से निकाल के डायरेक्टली तुम्हारे हाथ पे आती है वो, और फिर उधर जाने के बाद स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, तो पढ़ते-पढ़ते फिर काफ़ी बारी सीनियर एक्टर्स ऐसा, ऐसे कौन बोलता है? नहीं, नहीं, आई एम नॉट गोना टेक इट इन दिस वे। फिर वो अपने लाइन्स बदल देते हैं। फिर उनके लाइन्स जैसे बदले हुए रहते हैं, फिर उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारे लाइन्स भी थोड़े-से एडजस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि Oh my God. होता है ना कि वो उस उसमें बैठना चाहिए। Yeah. फिर वो उधर बैठे-बैठे फिर 10 बारी स्क्रिप्ट, फिर हमको लिटरली स्कूल जैसा पेन और वो पाउच में रहता ही है, टच अप के पाउच में पेन वगैरह सब। तो यू हैव टू सिट एंड हाँ, फिर कभी-कभी डायरेक्टर को पसंद नहीं आता है, तो या फिर जो स्क्रिप्ट में दिए हुए प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो फिर वो कैंसल करके कुछ और उसमें लिखना पड़ता है, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है उस हिसाब से स्क्रिप्ट। तो आधी स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रीन प्ले राइटर करता है, फिर आधे डायलॉग राइटर करता है, फिर डायरेक्टर करता है, फिर बचे कुछ एक्टर भी कर लेते हैं। तो तो इस तरह से काम चलता है कि जिधर जो मेन डायलॉग राइटर रहेगा वो बैठ के ऐसे देखता रहेगा, हाँ, ये मैंने लिखा है। ये Modify होते हाँ, तो ये चाइनीज़ विस्पर जैसे जब तक टेलीकास्ट होता है तब तक कुछ और ही आ जाता है। हैं। बट या नॉट लीविंग द मेन थिंग, बट ये ऐसे चलता है इंडस्ट्री में, जिधर बहुत बारी हम चेंज चेंज नहीं करते, उसका मीनिंग चेंज नहीं करते, बट हम अपने वे में उसको लेते हैं। Like I've seen a lot of TV actors, especially the ones that I mean, me as a viewer, the ones that I used to follow back in the day.
I've seen a lot of the interviews where they say that it makes you very resilient as an actor. You become very, मतलब आप बहुत strong हो जाते हो as an actor to deal with any. They say TV makes you stronger. आई वुड रियली से टीवी एक्टर्स, मतलब जो जो लोग टेलीविजन करके जा रहे हैं ना, दे 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 आर द वॉरियर्स। आई वुड रियली से बिकॉज टीवी सीरियल्स के वजह से, आई डोंट नो अबाउट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स एंड ऑल वट एवर गुड थिंग्स यू गेट, बट टॉकिंग ऑफ द मोस्ट थिंग इज की स्ट्रगल है कि रोज जाना है, दूर दूर सेट्स रहते हैं जहाँ घंटों, लिटरली हम मुंबई में रह के दिन में 5 घंटा ट्रैवलिंग करते हैं। कैन यू इमेजिन, लाइक माई लास्ट सेट वॉज इन मड। हमें अगर मड से बाय रोड आना है तो हम सुबह जाने के टाइम 1.5 घंटा ट्रैवल करते हैं, आने के टाइम 1.5 घंटा ट्रैवल करते हैं। तो अगर ट्रैफिक रहेगा तो 2-3 घंटा तो हमारा चला जाता है ऐसी वन टाइम में। तो कोई बोलेगा नहीं कि हम मुंबई में रहकर ही इतना घंटा ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग का तो है ही। प्लस सुबह फिर वही जो भी रात को पैकअप जब भी होगा उसके बाद तुम्हें खाने पीने मिलता है नहीं मिलता है। बहुत से एक्टर्स इसलिए अपना वो बास्केट कैरी करते हैं ताकि, और ट्रैफिक में जब अटके हैं तभी डिनर कर लेते हैं जो भी बचा कुछ है, ताकि घर जाके सिर्फ सोने मिले हमें। एंड द मोस्ट सैड पार्ट अबाउट एक्टर्स आई फील इज की द मेकअप पार्ट, बिकॉज continuously wearing the base and all over your things for शूटिंग के 13 घंटे, और फिर थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक मिलता है फिर वापस। तो अगर जो डेली सोप एक्टर्स है उनके लिए रेगुलर है, तो वो स्किन ना इतना ज्यादा ड्रेन हो जाता है कि वेन एवर यू रिमूव द मेकअप यू जस्ट वांट टू स्लीप, बिकॉज योर फेस, योर बॉडी, योर आईज हैव बोलते हैं ना कि इट हैज हैड एवरीथिंग। तो इससे ज्यादा तो नहीं चल सकता। तो टीवी एक्टर्स के साथ छल होता है बेसिकली। छल हो जाता है। और अगर तुम ये छल में से पास हुए हो तो देन यू डोंट फील एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट। But in the middle of all this, tell me, how do you manage to switch on and off from a character? How does that happen? Because you're getting into so many characters, and then if you're doing multiple projects, you're technically dealing with different storylines. एक कैरेक्टर को उन्हें अपने अपने अंदर डालना, इंटीग्रेट कर लेना अपने अंदर. हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? व्हाट हैव यू फिगर्ड आउट अबाउट सो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, पहले तो मुझे खुद को पता चलना चाहिए था कि मुझे मेरे में कितने पर्सनालिटीज है, कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। एंड इफ यू हैव नोटिस दैट एवरी पर्सन इज अ born एक्टर, एवरी पर्सन इज अ एक्टर, दैट? it's just that we show it in front of camera and others do it in the house. So या it's just that कि वो सेम चीज अगर तुम मतलब how I'll tell you how we developed, मतलब basically how I developed being that on switch off thing, कि जैसे हम घर में रहते हैं कि अगर हम चोरी से अगर कुछ फ्रिज में से खा लिए तो वी आर एंजॉयिंग इट, एंड देन समबडी कम्स एंड देन वी जस्ट, कुछ हुआ नहीं वैसे, you know, we या just be that one. How did we switch that when we are just doing something, or we are just gossiping about somebody, and that person comes and we are, hey, hi, how are you? So how we just switch it. This is acting. Isn't it? Because it's just that you need that realization where जो हम रियल लाइफ में करते हैं दैट इज व्हाट वी आर पोर्ट्रेइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो चीजें रियलाइज करना इज अबाउट एक्टिंग एंड डूइंग इट एज, थोड़ा बोलते हैं ना मैकेनिकली, वो वही है सब, मतलब जो कैमरा के सामने करते हैं। बट स्विच ऑन स्विच ऑफ तो सीरियल से आता है। टीवी सीरियल्स कर लो भाई। सब समझ आ जाएगा. आ जाएगा। You won't believe me. Last year in March, I was doing 3 serials constantly. Like, one time I was doing 3 serials, but it was a cameo. So मेरे character roles थे 3 serials में, तो on off तीनों में चलता था। तो जहाँ के मेरे तीनों सीरियल्स माइथो ही थे तभी, या वन, एक सेट मेरा नासिक नहीं, दो माइथो सीरियल्स थे और एक डेली सोप का था। तो जहाँ मेरा एक सेट नासिक में था, आई वाज स्टेइंग इन नासिक, दूसरा सेट फिल्म सिटी गोरेगांव में था मुंबई में, और तीसरा सेट नायगांव में था। Oh my God. एंड माय हाउस इज हियर इन अंधेरी। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल All एंड common. आई
या आई हैड लॉस्ट माई थिंग्स बिकॉज ट्रैवलिंग में ही मेरा इतना एनर्जी चला जाता था। मुझे वो रीगेन करने का टाइम कितना मिलता था पता है? जितने टाइम मैं मेकअप के लिए बैठती थी। जब तक मेकअप दादा मेरा मेकअप कर रहा है तब तक मेरे को वो कैरेक्टर कि हाँ भाई अभी कहाँ पर हूँ मैं, अच्छा गोरेगांव में हूँ, ओके मेरा ये कैरेक्टर है। हाँ थोड़ा मेकअप करने तक वी हैव द टाइम टू गेट इन दिस कैरेक्टर। वो वो हो जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि तुम जैसे एक्सपीरियंस लेते जाते हो उतने कम कम टाइम में यू लर्न मोर टू स्विच ऑन स्विच ऑफ। Do you need to put in a significant amount of time to understand the character that you're doing? Is there work that goes behind that as well? जो नोन फेसेस है उनका पोर्ट्रे करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो वो अभी तक मुझे कभी मिला नहीं है, इसलिए मैंने उस पे इतना कभी काम नहीं किया। लेकिन या एज़ यू से माइथोलॉजी शोज़ के टाइम पे जब मेरा मेरे साइ का ये चल रहा था हिंदी सीरियल, तभी मेरा जो कैरेक्टर था दैट वाज़ अ स्टैमरिंग जिसको एक गाँव की लड़की, गरीब लड़की, दलित लड़की जिसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है। शी कांट टॉक द द द प प प प ऐसे करके जो बात करते हैं हम, वैसे मेरा था। उस टाइम पे मेरे लिए वो थोड़ा टफ था। आई एनीवेज़ हैव अ हस्की टोन, आई एनीवेज़ हैव लिटिल हस्की वॉइस एंड my overall thing. Plus doing this stammering ka character is like taking a lot of like inhaling through your mouth more than nose, and that spoils your throat. तो दैट वाज अ वेरी टेक्निकल थिंग जो मैंने आई थिंक अराउंड 3-4 मंथ्स का वो कैरेक्टर था एवरी डे। मतलब उसके बाद उसका शादी होकर वो सब अलग हो गया, वो 1 साल का रोल था। बट आई एम टेलिंग यू इज कि जितने भी टाइम मेरा वो पार्ट था स्टैमरिंग का, और स्टार्टिंग में ही था, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन ही वैसा हुआ था ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा वो था कि आई हैड टू सिट एंड ब्रीद एंड ट्राई टू या तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है दैट यू हैव टू डू विद प्रैक्टिस ओनली, एंड आई माई सेल्फ डिड नॉट नो कि मैं कर सकती हूँ। ये मैंने ऐसे ही रैंडम मुझे आया, मैंने ऑडिशन वो मेरे को मुझे पता है लिटरली बाद में वो मुझे डायरेक्टर ने बोला था कि बेटा ऑडिशन ना ऐसे-ऐसे बनाते हैं। मैंने लिटरली मेरा कैमरा फ्रंट में विंडो पे ऐसे रख कर सामने बैठ के मैंने ऑडिशन ऐसे फ्रंट कैमरे से बना के दी थी। बट जस्ट फॉर माय वे ऑफ मतलब उन्होंने मेरा पोटेंशियल देखा लकीली। और आई एज़ आई टोल्ड यू इट लक वेयर अगर ये कैरेक्टर तेरे नसीब में है, तो वो कैसे भी आ सकता है। यू डोंट नीड टू गिव लाइक बिग ऐसे अच्छे वाले ऑडिशन देना चाहिए, नॉट सेइंग दैट। बट ये जो मेरा कैरेक्टर हुआ था वो बहुत ही नसीब से हुआ था। हिंदी का मेरा पहला प्रोजेक्ट एज ए लीड हुआ था। वो लीड मतलब बैनर मतलब साईं बाबा का शो था, बट साईं बाबा के साथ जो हम लड़का लड़की रहते हैं वो हम दोनों थे साइड में थे। तो उतना भी बहुत बड़ी बात है। तो इट इट जस्ट हैपेंड टू मी एज आई टोल्ड यू। तो ये मेरे लिए तो स्टडी बस इतनी, बाकी तो आई डू माई इम्प्रोवाइजेशन, आई ट्राई टू गिव लिटिल वेरिएशन टू ऑल द कैरेक्टर्स आई डू। एंड मैं क्या कोशिश करती हूँ कि हर एक कैरेक्टर में मुझे मेरे अंदर का ही कौन सा नया पार्ट सीखने मिले, या मेरे अंदर का ही कौन सा नया टैलेंट मैं और कर सकती हूँ ना। आई वॉज जस्ट सीइंग दैट। तो या तो दैट्स रिसर्च पार्ट, मतलब खुद के ऊपर। और जैसे दूसरों को हम देखते हैं दूसरे एक्टर्स को, तो उनमें से मैं कोई क्वालिटी ले सकती हूँ क्या, लाइक ऑल बिग बिग स्टार्स। तो उन लोग का कोई बात करने का स्टाइल या उनका रोने का कोई स्टाइल। तो अगर रोना भी है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइंग, कि अगर अ सटल क्राइंग, अ वेरी हार्ट ब्रोकन क्राइंग, अ वेरी इमोशनल क्राइंग, अ हैप्पी क्राई, सैड, ऐसे अलग अलग रोने के इसमें भी बहुत सारे। तो ये अलग अलग चीजों का इंट्रोडक्शन मैंने खुद को कराया जब आई स्टार्टेड सीइंग दिस एक्टर्स हाउ दे डू इट। तो आई ट्राई टू कॉपी। समटाइम्स जैसे बोलते हैं ना कि हम फेक इट टिल यू मेक इट, इट इज दैट। तो अंटिल यू डोंट फाइंड योर ओन वेरिएशन, ट्राई टू कॉपी समवन जो बेटर कर रहा है। हो सकता है उसको कॉपी करते करते तुम्हें तुम्हारे अंदर का एक वेरिएशन मिल जाए जो यूनिक हो। तो वो मैं करती हूँ ऐसे। Started out so young. What have you learned from these senior actors on set? You know, what are some of the things that have stood out in your journey with them? Because these are actors who, especially theater actors, I know I've seen a couple on stage itself, and it's a different energy that they bring to the entire character that they play. What have you understood about the entire art and craft from them? So, the senior actors with whom I have worked, I have learned many different things.
from first of all I have seen is patience in them, because in having patience in this industry is a very big thing, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रोफेशनल नहीं चलता है ना. प्रोफेशनल इन द सेंस देर इज नथिंग, जैसे कॉर्पोरेट में रहता है पैटर्न, वैसा नहीं आता है. यहाँ पर क्रिएटिवली काम चलता है. तो बहुत बार ये सोच जाता है कि वी प्रिपेयर आवर माइंड फॉर समथिंग एल्स, और फिर एंड में कुछ और आ जाता है. तो यू नो, हैविंग दैट एक्सेप्टेंस, एंड जो मेरे में अभी तक नहीं हो रहा है, मेरा कभी कभी हिल जाता है, क्योंकि वो होता है कि वी आई इट्स सिंस आवर्स आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस थिंग एंड नाउ यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस. तो वो मेरा हो जाता है. बट द वे दिस सीनियर एक्टर्स एक्सेप्ट दिस चेंज, उनका भी हो जाता है कभी कभी, बट वो हो जाता है कि ठीक है अभी तो आदत हो गई है वैसा. तो दे आर सो काम, एंड दे जस्ट ठीक है, गेट टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट नाउ. तो दे जस्ट बोलते हैं ना, वो मूव ऑन इजीली हो जाते हैं. वेर एज मी स्टिल बीन यंग, आई स्टिल फील annoyed और आई स्टिल फील इरिटेटेड वेर समथिंग जो जैसे अपन प्लान करते हैं वो लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है, और कुछ और होता है. तो आई थिंक दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड विथ योर सीनियोरिटी. तो slowly and eventually looking at their patience, I think I'll also increase my patience. Secondly, the way every actor has a different way of portraying themselves on set, off camera. तो जैसे इन माई रिसेंट शो आई हैड वन ऑफ माई सीनियर एक्टर, सो शी हैड थिंग, मतलब वो हमें बोलती थी शी वॉज वेरी मच इंडिपेंडेंट वुमेन, even though she was a little strict and all, but she was a very independent woman. She used to carry her own small basket. In that small basket, she used to have a water bottle, a little small tiffin of whatever dry fruits or some whatever to eat on set. अगर लंबा चल अगर break नहीं हुआ तो, then her script, then her mobile phone, then her touch up का pouch and all necessary things जो हम बहुत टाइम तक अगर ग्रीन रूम में जाने नहीं मिला तो we should have it handy. वो सब वो रखती थी, एंड शी टू कैरी इट एवरीवेयर विथ हर, एवरीवेयर. मतलब अभी तक उसने उसने दो तीन सीनियर एक्टर्स को वो गिफ्ट भी किया है बास्केट, सो दैट, क्योंकि नॉर्मली व्हाट हैपेंस नो, फ्यू एक्टर्स ऑन सेट दे डोंट हैव डिसिप्लिन. जैसे कोई नया आता है या कोई ऐसा थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज. तो जस्ट फ्यू पीपल जस्ट कम ऑन सेट एंड दे माइट जस्ट बी लाइक कि हमेशा स्पॉट दादा प्लीज ये दो, स्पॉट दादा वो दो, प्लीज पानी पिलाओ, प्लीज जूस पिलाओ, प्लीज ये करो. तो so I feel the what I learned from her is कि she's like कि why to keep troubling others 10 times, why to keep, मतलब ये तो वो लोग है उस काम के लिए डेफिनेटली, बट यू शुड हैव डिसिप्लिन इन योर सेल्फ फर्स्ट. कि शीज लाइक मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वो बास्केट लेकर ही जाती हूँ, एंड आई कीप इट. अगर हम यहाँ शूट करें तो मैं वहां जिधर चप्पल निकालते हैं हम शूट के पहले, वहां पर बास्केट रख देने का, क्योंकि नोबडी एंड एवरीबडी नोज ऑन सेट कि ये बास्केट इनका ही है, तो कोई हाथ नहीं लगाने वाला है उसको. कि शिफ्टिंग के टाइम पे कुछ खो गया कुछ गया, कोई हाथ नहीं लगाने वाला है. अगर रखना भी रहेगा तो वो उनको पता है कि इनका ही बास्केट है. तो यू हैव योर ऑल थिंग्स हैंडी, यू डोंट हैव टू कीप गिविंग. जैसे अगर फोन है तो कभी कभी हो जाता है कि द कॉस्ट्यूम्स विच आई एम वेयरिंग डजंट हैव पॉकेट इन. हाँ, तो अभी फोन कहाँ रखने का, तो व्हाट वी टेंड टू डू, वी गिव इट टू हेयर दीदी प्लीज जरा पकड़ लो, मेकअप दादा प्लीज अपने पाउच में रख दो, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर हम जहाँ बैठे हैं वहां कहीं पर रख देते हैं. पर फिर क्या होता है, बहुत लोगों का फोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, या सेट पे हम कहाँ भी रखते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ फिक्स थिंग. अगर सोफा भी ऐसा रखा है तो वो निकाल के फटाफट फटाफट उसका कुछ और भी बन जाता है उस सेम जगह का. इट इज वेरी क्विक. और अगर उस गड़बड़ में तुम्हारा पर्सनल थिंग कहीं खो गया, so nobody is going to take responsibility of it, because there are no cameras and all also on set, you know. So you don't know खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी चीजें कैसे रखना, ये मैंने सीखा. फिर कुछ लोगों का वो रहता है कि दे हैव देयर डिसिप्लिन, कि बाबा सी दे विल बी वेरी पोलाइट. प्रोडक्शन को भी अगर उन्हें कुछ अपने पॉइंट्स बोलने हैं तो दे विल बी वेरी पोलाइट. दे विल टेल प्रोडक्शन कि सी, you know I'm coming to work every day, I'm already working for so many hours, I'm not working for more than 12 hours. And then after 12 hours very patiently they'll just walk out. It is their personal thing, but I feel they are not wrong also, because if a TV serial actor is coming every day on set, they're working every day for 13 hours every day, including the makeup doing hours also, plus including the traveling hours. And every day if the person has to come,
He needs rest. You can't just make him work continuously. So there are many actors who have young kids, who have small families, whose kids are very small. Literally, people I have seen actors working even when they are pregnant. Women, I really respect for them. I really have a different level of respect for them because जब तक बोलते हैं ना कि 7-8 मंथ्स तक, जब तक पेट नहीं दिख रहा है तब तक वो लोग काम करते हैं एज इन देयर कैरेक्टर. नोबडी कम्स टू नो. एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग कि ये सब हैंडल करके पीपल आर वर्किंग फॉर इन दिस इंडस्ट्री. एंड आई सी सीनियर एक्टर्स आर वेरी डेडिकेटेड. अगर वो लोग 40-50 साल अगर इस इंडस्ट्री में है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग यार. इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टिल वर्क विद दैट पैशन इन दिस इंडस्ट्री. जबकि लोगों ने अभी तक बहुत पैसा भी कमा लिया है. मतलब इतने साल तुम अगर इंडस्ट्री में हो तो दे आर क्वाइट सेटल्ड. दे डोंट नीड टू वर्क, but still they are working, but they're still into this, they are still तो आई फील कि इन लोग का पेशेंस अगर तुम सीख लोगी ना, तो तुम इट्स गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म रन. अगर इम्पेशेंट रहोगी, चिड़चिड़ होती रहेगी, तो इट इज गोइंग टू हर्ट यू ओनली. एंड फिर तुम्हारा जर्नी शॉर्ट हो जाएगा. समझ, इट्स जस्ट दैट. जितना अपना एनर्जी कंज्यूम करोगे, उतना लंबा चलोगे, इतना लंबा रहेगा. So I learned this also from. There are many things actually I feel I have learned from my. Actually, I've learned everything from my seniors only, because I never got any guru, and I did not get any teacher to teach me कि acting ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर. जो जो मैं काम करते करते सीखते गई वही मैं उसको कर. बट हाँ, वन थिंग आई मेड अ नोट ऑफ एवरीथिंग. जो जो मैं सीखती जाती हूँ, मैं उसको वो मैं छोड़ नहीं देती वहां पर कि. और मेरे में वो आई कीप नोटिसिंग. आई जस्ट डोंट गो सिट. ऐसा नहीं है मेरा. इफ यू वांट टू लर्न, यू हैव टू कीप नोटिसिंग गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, बोथ. गुड थिंग्स टू टेक एंड उसको समझ के सीख के आगे लेके जाने के लिए, एंड बैड थिंग्स कि पता चलने के लिए कि हमें क्या नहीं करना है. जैसे कुछ सीनियर एक्टर्स जूनियर्स के साथ बहुत ही वाहियात बिहेव करते हैं, रूडली बात करते हैं, उनका मॉरल सपोर्ट डाउन कर देते हैं, कि उनको कॉन्शियस करते हैं स्क्रीन पे ताकि वो उनके सामने उतना अच्छा ना दिखे, या कुछ भी हो. देयर आर मेनी डिफरेंट रीजंस. बट उसमें मुझे लगता है कि यू नीड टू नो कि तुम्हें क्या नहीं करना है. जैसे अगर मुझे पता है कि इफ टुमारो आई बिकम सीनियर, इफ आई हैव सम जूनियर हु इज वर्किंग विथ मी, आई ट्राई टू मेक हिम कंफर्टेबल विथ मी फर्स्ट, सो दैट इट इज गुड फॉर अस कि हम दोनों स्क्रीन पे अच्छे दिखने चाहिए. My last question to you is what are you looking forward what are you looking forward to, and which is that one script that you believe कि ये आ गई तो मेरा जो मैं चाहती हूँ वो हो गया. I am looking forward to, like, I don't know how to say, but I like I somehow like subtle and very जो आँखों से बात करते हैं ना वैसे वाले एक्टिंग्स. बेसिकली मतलब आई डोंट नो हाउ टू से, बट लाइक हाउ ऐश्वर्या राय स्पीक्स थ्रू हर आईज, how Madhuri Dixit expresses through her eyes, how Priyanka Chopra talks with her. All such actors, no, I just know how they just वैसे जो स्क्रिप्ट्स है ना, मुझे वैसे करनी है. बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर संजय लीला भंसाली. मतलब आई नो इट्स अ वेरी एक्स्ट्रा थिंग, बट not only because it's Sanjay Leela Bhansali, but it's more of because the scripts and the way he portrays the things. No, I just, well, I just try to work on that kind of acting. And I would love to have such type of script in my future life, where I would get such director who would take out of that subtlest and beautifulest and naturalist. I don't know how to say it, but that level of acting from me. And I still feel that I have not achieved, or I have not seen that level of uh, एक्ट विद इन मी. तो आई फील अगर मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर मिले, पहली बात तो जो मेरे से वो सब निकाल सकता है ना, ऐसा कि यू कैन डू इट, कि ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. जैसे संजय लीला भंसाली जी करते हैं, उनके एक्ट जब जो जितना मैंने उनके एक्टर्स के इंटरव्यूज में सुना है, वैसा कोई चाहिए जो तुम्हें ना, वो तुम्हारे अंदर की जो ब्यूटी है ना एक्टिंग की, वो निकाले. तो दैट इज दैट वन थिंग आई फील
आई विल बी वेटिंग फॉर। और तब तक के लिए जो चल रहा है वो चलते रहेगा। और या जस्ट कि तुम्हें जैसे जो जो तब तक के लिए दूसरे चीजें भी एक्सप्लोर करूंगी मैं, बट डूइंग दैट लेवल ऑफ एक्टिंग इज माय ड्रीम। जहाँ पर कि वो देखते ही सामने वाले के आंखों में आंसू आने ही चाहिए। इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग, लाइक हाउ इफ आई सी बाजीराव मस्तानी, लाइक आई कैन सी इट एनी टाइम एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, ओनली फॉर प्रियंका चोपड़ा, because the way she has done, or maybe you can say the heart broken smile वाली acting रहती है ना, कि where the heart is broken but there is a smile and there's a pain in your eyes but you're not crying, but still you're talking, and like basically just you understand what I'm trying. Yeah, exactly. And I feel if I could do that, then maybe then I can say that I've achieved something. Thank you so much. You were very nice, and yeah, it's sometimes having a conversation with somebody is also necessary. क्योंकि होता है ना कि अगर कोई हमें सवाल पूछता है तब हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था खुद को भी, कि हो जाता है कि ये मुझे किसी ने पूछा नहीं पर ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर doing this podcast, you're doing this interviews and all. Very nice. Keep doing, and I loved. Thank you for having me in your show. And yeah.